So good morning and welcome to PAS Academy. Okay, I am Vijay Kumar Barik, and you have seen today I will discuss about in geography the major topic is the major physical division of India. Okay, so all of you welcome. So first we'll have an introduction. Previously we have discussed about in geography. Okay, today's topic is I have written here physical division of India. Okay, so generally we first see what is the part of physical geography. Okay, so previously we discussed about the globe. Yes or no? Previous class we have discussed about the globe, and in globes there is the major latitudinal and longitudinal lines are there. India is present above the equator. Equator is lies at 0 degree. Okay, 0 degree. There is the equator portion. India lies above the equator means here the position of India is just above the equator, you can say. Okay, and Tropic of Cancer is passing through the middle part of the India. If it is the rock map I want to draw. Okay, if it is the India's map, so Tropic of Cancer is passing through the middle part of the India. That's why India lies in mostly torrid and tropical zone. Means if above the equator means it's the torrid zone, and in between them if the Tropic of Cancer is passing means the zone is tropical zone also. Okay, and northern part and the southern part, as India is divided into 4 sections, means we can say here in northern part the Himalayan mountain is there, in southern part Indian Oceans, in eastern part Bay of Bengal, and in western part Arabian Sea. So India is covered with from the 3 sides water bodies, and in northern part it is a mountains. Okay, so means if you consider about the physical divisions, first you have to know about what is latitudinal and longitudinal extension of India. If I want to draw here, okay, here is the top map of India. Okay, so means here the latitudinal extension means we can say here the latitudinal extension means from here to here. Okay, from here Gujarat, okay, Gujarat, Ran of Kutch, okay, and from here Arunachal Pradesh. Okay, so latitudinal extents of India is from here to here, so we can say here from here it is, okay, and from here to and here. Okay, the longitudinal extents means there is the distance over here from latitudinal extents and from the longitudinal extents. Okay, because latitudinal lines are running from here to here and longitudinal lines are running from here to here. Okay, as equator is lies here, so definitely the latitudinal extension started from here. It is the 8 degree 4 minute north to 37 degree, okay, 8 minute north. So yeah, 8 minute 37 degree 8 minute north. That is our latitudinal extension. Okay, if you consider about the longitudinal extensions, so longitudinal extensions here from 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. Okay, the latitudinal extension, longitudinal extension. Why this extension is required? Means this extension seems that so India's position on the global map or world map. Okay, because previously I told that India is or world is divided into 24 time zones. How many time zones? 24. Okay, 24 time zones, and these 24 time zones makes our world to calculate the time, and calculation of the time 1 degree is considered about the 4 minute. Okay, 1 degree is 4 minutes. So there is the
2 hours time gap between the Gujarat and Arunachal Pradesh. Sun rises 2 hours earlier in the Arunachal Pradesh, whereas sun rises 2 hours late in the turn of Kutch or in the Gujarat. Why? Because here, due to the latitudinal extension, because there is a 30-degree gap between from the Arunachal Pradesh to the Gujarat. Okay, as 1 degree is 4 minutes, then 30 degree will be the 30 into 4. How many degree? 120 minutes. Okay, 1 degree is 4 minutes, then 30 into 4, 140. Sorry, 120 degree. Okay, 120 minutes means that is the 2 hours. Okay, 2 hours. So see, 2 hours time gap is from Arunachal Pradesh to Gujarat. But why? India is passing between the +5 or +6 time zone. Okay, India lies between the 2 time zones. Okay, in these time zones makes a confusion between the how to calculate the time between India and different parts of the cities of India. Okay, इंडिया में कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि अगर 2 टाइम जोन को हम फॉलो करेंगे, कौन सा ना +5 एंड +6 को, then it will create a confusions. That's why India is taken as a standard meridian which is 82 degree 30 minute. Okay, which is +530. Okay, it is passes through Mirzapur in Uttar Pradesh. Okay, and from this time zone or time scale, you can say these latitudinal lines divide India into equal halves and they maintain the time gap between the Arunachal Pradesh and Gujarat. If these time gaps will be there, so we have the problems in flight departure and arrival time, train departure and arrival time, because trains and flights are they are running from the interstates or international also. Okay, so then how can we know that? Okay, you will see in the next slides. Just see. Okay, I've written here the latitudinal and longitudinal extension I told. Okay, India's lies between latitudinal extension 8 degree 4 minute to 37 degree 6 minute north. Why it is north? Now it is lies in the northern hemisphere. That's why it is the north. North में क्यों है? क्योंकि ये जो latitudinal extension है यहाँ से लेके यहाँ तक नॉर्थ में ही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर से वो. लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन देखो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, जो कि ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन रहता है. तो ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन रहेगा मतलब यहाँ पे एक्सटेंशन क्या होगा, ईस्ट. ठीक है, तो इंडिया को तुमने अभी जानते होगे अभी पॉपुलेशन वाइज इंडिया कितना नंबर पे है, फर्स्ट. व्हेन विल डिक्लेयर इन 2023 नवंबर, 2023 नवंबर में India crosses the China in the population wise, area wise the 7th largest country in the world. Okay, in population wise right now first after crossing the China. चाइना को क्रॉस करके अभी नंबर 1 हो गया है 2023 में. अभी इंडियन का पॉपुलेशन कितना हो गया, नियर अबाउट 140 करोड़ प्लस 143 करोड़. ओके, 43 करोड़ मीन्स 140 करोड़ प्लस. दैट्स व्हाई. ओके, तो हियर आई हैव रिटन इंडियाज टोटल जियोग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. मीन्स टोटल अगर बात करेंगे वर्ल्ड में कितना एरिया कवर अप करता है इंडिया, इंडिया इज कवरिंग, तो वर्ल्ड का जितना टोटल एरिया है तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया का ओके 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है. ओके, स्क्वायर किलोमीटर देखो. सो व्हिच इज अबाउट 2% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड. मीन्स अगर वर्ल्ड की टोटल लैंड एरिया बात करते हैं तो हम 100% पकड़ेंगे. ठीक है, तो उसका कितना परसेंट होता है, 2.4%. ओके, लेट्स सी. देखो, सो हियर आई हैव रिटन द नॉर्थ एंड साउथवर्ड एक्सटेंशन फ्रॉम द कश्मीर टू कन्याकुमारी. मीन्स हियर यू कैन से सी, तो फ्रॉम हियर नॉर्थ में कौन है, कश्मीर. ओके, साउथ में there is a song was there, someone was reciting the song Kashmir to Kanyakumari. Okay, so from here to here, okay, Kashmir to Kanyakumari. So means here the distance, what is the actual distance, roughly we can say, but here the actual distance is from north to south, there is the 3214 kilometer. Okay, from east to west
Okay, 2933 kilometer. Okay, so here you see from the north to south the distance and east to west the distance. Okay, north to south and east to west distance. Okay, Kashmir to Kanyakumari distance is 3214. I have written also here maybe, yeah. Okay, 3214, which is approximate 3200 kilometer. Okay, from northern here you can east and west extension from Kutch to अरुणाचल प्रदेश. कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में. गुजरात का राउंड अप कच्छ से अरुणाचल प्रदेश, that is 2900 kilometer. Exact is 2913. Okay, 13 नहीं, your printing mistake was there. It is the 33, not 13, 33, 2933 kilometer. You will see, so there is a little bit difference between the north and south extensions distance and east and western extension distance. Why? Because the northern part is little bit highly elevated. Previous class I told that it is the little bit higher altitude area and the down part is slopey. Okay, that's why there is little bit more distance is covered when you come from the upper part to the lower part. That's why from north and south direction is distance is 3214 and east west direction is 2933 kilometer. Got it? Yep. So here तो मेजर फिजिकल डिवीजन के अंदर हम यहाँ पे 6 मेजर फिजिकल डिविजन्स, ओके, 6 मेजर फिजिकल डिवीजन है. Okay, and sometimes we will see, so first part here in northern part, okay, this region is called the northern Himalayan regions. Okay, then after you will see here what is written Gangetic plain, that is comes under the northern plain area. Okay, northern plain area. Okay, then you will see here deserted area, that is third desert. Okay, then this one the central highland and Deccan area, that is the peninsular area. In India having long coastline from Gujarat round up coast to here West Bengal's border. Okay, means there is the coastal line. Or here you have seen Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep Island. Okay, so count how many physical divisions I am writing here. First one is northern mountain, okay, northern mountains. Then in second what we write, the northern plain, northern plain area. Third one is, okay, then no, coastal area, coastal area. Okay, fourth one is Deccan, or you can that is the peninsular plateau. Plateau, sorry, plateau. Next, fifth one is desert, and sixth one is islands groups. Okay, sometimes you have seen in some books it is written 5 major physical divisions. They are, that is the desert and islands, they togetherly merge them. एक ही जगह पे उनको ले लेते हैं, नहीं तो हम जनरली 6 फिजिकल डिवीजन के अंदर पढ़ते हैं. नॉर्दर्न माउंटेन्स जिसको हम हिमालय माउंटेन के नाम से जानते हैं. देन नॉर्दर्न प्लेन जिसको हम गैंगेटिक प्लेन के नाम से जानते हैं, यहाँ पे मैप में तुम देख रहे होगे. ओके, कोस्टल एरियाज जो इतना बड़ा हमारा कोस्ट लाइन है, दैट इज द कोस्टल एरियाज. देन पेनिनसुलर प्लेट्यूज मीन्स द डेक्कन प्लेट्यूज, ये वाला पेनिनसुलर प्लेट्यूज जो सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यूज है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यूज के अंदर आ जाता है. डेजर्ट हमारे वेस्टर्न डेजर्ट यहाँ पे जो है, दैट इज द वेस्टर्न डेजर्ट. एंड आइलैंड्स ग्रुप्स दैट लाइज इन बे ऑफ बंगाल इन अंडमान निकोबार आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल and Lakshadweep Island in Arabian Sea. Okay, these are the parts. Next we'll discuss about the neighboring country of India. Okay, see, neighboring countries. What are the neighboring countries are there? Okay,
So definitely as India is lies okay in the एशियाटिक कॉन्टिनेंट सेंटर में, ओके इंडिया कहाँ पे है? एशियाटिक कॉन्टिनेंट के अंदर अगर सेंट्रल पार्ट में लाइज करता है, ओके ऐसे अगर इंडिया का हम एक रफ मैप ड्रा करें, ठीक है, तो ये एशियाटिक कॉन्टिनेंट के अंदर सेंटर में लाइज कर रहा है, तो डेफिनेटली इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ नेबरिज कंट्री होंगे या नहीं? नहीं, इंडिया इज ए लैंडलॉक कंट्री, नो इंडिया इज नॉट ए लैंडलॉक कंट्री, ओके लैंडलॉक कंट्री मतलब चारों तरफ अदर्स कंट्री घेर के रहेंगे, लेकिन इंडिया के अंदर ये साइड में कंट्रीज हैं, लेकिन इस साइड में उसका वाटर बॉडीज के साथ कोस्टल एरिया लगता है, समझ में आ रहा है नहीं? ठीक है, तो अगर नॉर्दर्न की बात करते हैं, यहाँ पे नॉर्थ ये है हमारा वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ, ओके तो नॉर्दर्न में इंडिया का बॉर्डर लगता है किसके साथ? ना चाइना के साथ, ओके अदर पेन ले लेते हैं, ओके तो नॉर्थ में चाइना के साथ, यहाँ पे नेपाल और भूटान है, ठीक है, हम इसको नॉर्थ में किस जगह बुक में कैलकुलेट करता है, इस जगह पे इसको नॉर्थ ईस्ट भी कैलकुलेट करता है, नेपाल एंड भूटान, ओके अगर ईस्टर्न पार्ट की बात करें, यहाँ पे ईस्टर्न में बांग्लादेश, ओके एंड यहाँ पे और एक कंट्री है जिसको हम कहते हैं म्यांमार, ईस्टर्न में। साउदर्न में यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है श्रीलंका, और यहाँ पे एक आइलैंड कंट्री है मालदीव्स, ठीक है, हाँ लक्षद्वीप के साइड में, ओके आइलैंड कंट्री है जो साउदर्न नेबर्स है, ओके श्रीलंका, मालदीव्स, हाँ मालदीव्स, ओके और वेस्टर्न में क्या है ना, वेस्टर्न में उसका बॉर्डर लगता है किसके साथ ना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ओके तो वेस्टर्न में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये है उसका नेबरिंग कंट्री। सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? ओके नो, बांग्लादेश के साथ 407 किलोमीटर। शॉर्टेस्ट बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ 102 किलोमीटर, ठीक है, यहीं पे लगता है कुछ पार्ट अफगानिस्तान के साथ, सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर 102 किलोमीटर। सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश के साथ, मतलब यहाँ पे जो बांग्लादेश होता है ना, यहाँ पे एक मिनी इंडिया दिखता है, मैक्सिमम पार्ट लगता है, क्योंकि पहले जब हम पार्टीशन हुआ था इंडिया और हमारे लिख रहे हैं, यस इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था, कब हुआ था रे बताओ? 14 अगस्त 1947। इस दिन पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है 14 अगस्त को, ओके इंडिया मनाता है एक दिन के बाद 15 अगस्त को, ठीक है। तो उस दिन जो हमारा डिवीजन हुआ, तो ये वाला जो बांग्लादेश अभी हम देख रहे हैं वो था ईस्ट पाकिस्तान, ये वाला था वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। बाद में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इंडिया बीच में जो जगह ले लिया, इनको कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, इनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाए। मोहम्मद अली जिन्ना उस पीरियड ऑफ टाइम थे उनका लीडर, ठीक है, तो उन्होंने कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाए यहाँ से, तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट लगा रहा और इंडिया इसको जल्दी उनको छोड़ा नहीं यहाँ पे, तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो ये अपना इंडिपेंडेंस मांगने लगे। इसीलिए फिर ये ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश, इन्होंने सेपरेट एक कंट्री बना लिया, इनको फॉलो नहीं करके, तो उन्होंने बांग्लादेश अलग कर दिए, ठीक है। देखो हाँ 1971 देखो, तो ये 14 अगस्त वाला डे जो पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, हम एक दिन के बाद अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया ना, कुछ बॉर्डर खींचे थे, ओके तुमने सुना होगा, इसके ऊपर पिक्चर भी बना, ये वाला इरेज कर दो, ओके देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है द नेबरिंग कंट्रीज, ओके देखो यहाँ पे दैट इज सो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सा बॉर्डर है बताओ तो, ओके LOC, ओके दैट इज कॉल्ड रेड क्लिफ लाइन,
ओके, LOC, इसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ओके, और इंडिया और चाइना के बीच में ओके मैकमोहन लाइन, इसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, LAC। इंडिया और चाइना के बीच में हम LAC कहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में LOC कहते हैं। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन एंड मैकमोहन लाइन। ये जो लाइन है ये डिफाइन करता है कोई कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अपना जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ठीक है, उस बाउंड्री के साथ हम क्या कर सकते हैं ना, वो बाउंड्री मैक्सिमम जगह पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। इंडिया और चाइना के बीच में तुमने देखा हो कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि इंडिया का कुछ पोर्शन मतलब कहाँ पे है, यहाँ पे जो इंडिया का ये जो कश्मीर वाला पोर्शन है, यहाँ पे कुछ एरिया पाकिस्तान अपने कब्जे में लिया हुआ है। ओके, ठीक है, और यहाँ पे कुछ एरिया चाइना अपने कब्जे में लिया हुआ है। ये वाला पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, दैट इज द POK, ओके, एंड दैट इज द अक्साई चीन। ओके, अक्साई चीन। तो ये दोनों रीजन्स में मैक्सिमम क्या होता है, हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। अभी तुमने रिसेंटली न्यूज में सुना था एक साल पहले, डोकलाम सेक्टर में, वहाँ पे इंडिया और चाइना के जो सोल्जर्स थे वो आपस में भिड़ गए थे बिना हथियार। वहाँ पे रूल रेगुलेशन है, वहाँ पे कोई हथियार लेके नहीं जा सकता, आर्म फोर्सेज नहीं जा सकते, बिना हथियार के जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो वहाँ पे हाथापाई हो गया था। ठीक है, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट हमारे लगा रहता है। चाइना अभी भी कुछ एरिया में, जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे चाइना बोलता है वो अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। ओके, अभी भी अपना अभी रिसेंटली तुमने भी न्यूज में सुना हो, नेपाल भी कुछ एरिया दिखाया था अपने नक्शे में कि इंडिया का ये वाला पोर्शन हमारा है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा इंडिया का बॉर्डर शेयर कर रहा है। देखो, इंडिया पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ लगा कहाँ पे है, यहाँ पे, ये वाला सबसे छोटा बॉर्डर यहाँ पे, जो कि 1 है 2 किलोमीटर, और पाकिस्तान के साथ यहाँ से यहाँ तक। ओके, लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा बॉर्डर देखो यहाँ से लेके ये वाला बांग्लादेश, जो 407 किलोमीटर का है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे चाइना है नॉर्दर्न पार्ट में, नेपाल एंड भूटान के साथ, यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पे श्रीलंका के साथ, यहाँ पे अंडमान निकोबार के पास हमारा लक्षद्वीप में, सॉरी मालदीव्स, यहाँ पे मालदीव्स यहाँ पे जो साउदर्न नेबर श्रीलंका एंड मालदीव्स, यहाँ पे हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान हो गया, नेपाल चाइना भूटान हो गया, और इस साइड में हमारा क्या है, बांग्लादेश एंड म्यांमार। म्यांमार यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला म्यांमार। ओके, दिस वन द बांग्लादेश। तो ये हमारा नेबरिंग कंट्रीज है जस्ट। तो उसके बाद देखो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जस्ट मैं अभी जो बता रहा था 82 डिग्री जो 30 मिनट्स ईस्ट। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से हमारा टाइम स्केल डिफाइन होता है। जैसे बता रहा है इंडिया के अंदर जो टाइम है, देखो, सो ड्यू टू द ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस अबाउट द 29 डिग्री, सॉरी, ओके ओके, देखो 29 डिग्री विच इज अबाउट 30 डिग्री इन द राउंड ऑफ, तो 30 डिग्री होगा। अभी मैं कैलकुलेट करके बता रहा था तुम्हें, 2 आवर्स का टाइम गैप हो जाता है डिफरेंस बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, तो लोकल टाइम ऑफ लैटिट्यूड जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं रे, इसको हम क्या कहते हैं, लोकल टाइम जो लिए हैं वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। कहाँ पे पास करता है ना, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। ओके, जो कि कहाँ पे है ना, प्राइम मेरिडियन का ईस्ट में। प्राइम मेरिडियन वर्ल्ड के लेवल पे हमारा जो टाइम जोन डिफाइन होता है वो किसके बेसिस पे होता है, प्राइम मेरिडियन के बेसिस पे। ओके, तो इंडिया का जो लैटिट्यूडल एक्सटेंशन है, इससे लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन है, जिसको हम 82 डिग्री 30 मिनट, जो कि हम प्लस 530 टाइम जोन को लेते हैं। प्लस 530 टाइम जोन हमें कॉमन टाइम जोन मिलता है किसके बीच में ना, +5 एंड +6। ये जो कंफ्यूजन 2 आवर्स का जो टाइम गैप है जो, ओके, तो ये 2 आवर्स का टाइम गैप जैसे मेकअप हो जाए, तो उसके लिए हमने क्या पकड़ा हुआ है ना, +530 टाइम जोन को, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, इसको हम अपने स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से पकड़ा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश से पास करता है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में पास करता है। ठीक है, तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कौन कौन सा स्टेट में पास करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूपी उत्तर प्रदेश, MP मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ओके, एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आता है। ओके, द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया इज पासिस थ्रू इन आउट ऑफ दिस इन व्हिच स्टेट्स, कौन सा स्टेट्स में से इनमें से पास करता है, या फिर 4 स्टेट दे दिया होगा उनमें से किस में से नहीं पास करता है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओके, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अलग कुछ स्टेट्स में पास करता है। ओके, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम हम +530 टाइम जोन को ही लेकर के पकड़ते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे हम पकड़ते हैं। हाँ देख, तो अगर ये हमारा टाइम जोन है, वर्ल्ड का टाइम जोन है, वर्ल्ड का टाइम जोन 24 आवर्स 24 टाइम जोन में इसे डिवाइड किया करते हैं। तो इंडिया का जो टाइम जोन है, दो कहाँ पे पास करेगा, नहीं जो +530, तो यहाँ पे ईस्ट में कुछ स्टेट्स रह जाते हैं, वेस्ट में कुछ स्टेट रह जाते हैं। ठीक है, तो हर 1 डिग्री का जो गैप होता है वो हमारा 4 मिनट के हिसाब से कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से कितना आवर्स का डिफरेंस हो जाता है, 2 आवर्स का। तो 2 आवर्स का डिफरेंस अगर कैलकुलेट हो जाएगा तो हम अगर 24 आवर्स का टाइम जोन पकड़ के चलेंगे तो हमारे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन पकड़ना जरूरी कहाँ पे है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में तुमने देखा होगा, तो वहाँ पे वो 24 आवर टाइम जोन के हिसाब से चलते हैं। लेकिन हम जो लोकल टाइम में 12 आवर्स टाइम के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइम जोन होता है, तो वो टाइम जोन के हिसाब से जो 1 डिग्री है तो 4 मिनट के हिसाब से हमारा गैप हो जाता है। कितना गैप होता है, लगभग 2 आवर्स का, जो हमें अभी कैलकुलेट करके बता रहे थे। ठीक है, तो 1 डिग्री और 4 मिनट होता है, तो नियर अबाउट द 29 डिग्री 56 मिनट समथिंग है, जो कि नियर अबाउट 30 डिग्री का हमारा जो गैप है। ठीक है, तो 30 डिग्री का गैप को मैनेज करने के लिए हमने क्या किया हुआ है ना, कुछ एरिया को इस साइड में डिवाइड कर दिया है, कुछ एरिया को इस साइड में डिवाइड कर दिया है। जो ये प्राइम एरिया के ईस्ट में हम प्लस में कैलकुलेट करेंगे, प्राइम एरिया इस साइड में माइनस में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इससे जो हमारा 24 टाइम जोन से जो प्राइम मेरिडियन का वेस्ट में नेगेटिव में कैलकुलेट होता है, प्राइम मेरिडियन का राइट में पॉजिटिव में कैलकुलेट होता है। तो इंडिया का जो प्राइम मेरिडियन है जिसको हम +530 जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पकड़ते हैं, तो यहाँ से यहाँ पे जो टाइम होगा वो आगे ऐड होता रहेगा, प्लस होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम होगा वो सब्ट्रैक्ट होता रहेगा। ठीक है, यहाँ से वो सब्ट्रैक्ट होते रहेंगे। ठीक है, इसी हिसाब से जो गैप मैनेज हो जाता है, जो हमारा टाइम है वो गैप मैनेज हो जाता है, यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा। इसीलिए हमने +530 को या फिर जो स्टैंडर्ड मेरिडियन इसको पकड़ा हुआ है। ठीक है, देखो और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि इंडिया अबव तो इक्वेटर लाइज करता है, तो डेफिनेटली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में बहुत ही कम गैप रह रहा है। ठीक है, तो मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर इंडिया का सेंट्रल पार्ट में पास कर रहा है तो कुछ ना कुछ स्टेट्स के अंदर से जा रहा होगा। ठीक है, कौन कौन सा स्टेट में जा रहा है, यहाँ पे देखो, इट पासेस थ्रू गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स है जहां से हमारा क्या जाता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अभी मैं जो बात कर रहा था, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर इस स्टेट्स के अंदर जा रहा है तो डेफिनेटली इस स्टेट्स के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में क्या मिल रहा होगा रे, सनलाइट मिल रहा होगा। अगर सनलाइट मिल रहा है तो वहाँ पे जो जोन होगा वो कौन सा जोन होगा, टॉरिड जोन होगा। ठीक है, और थोड़ा सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अगर ऊपर जाएंगे तो हमें टेम्परेट जोन मिलेगा, ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा। ठीक है, देखो द सिटीज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नॉर्थ साइड में, जहाँ पे दे नेवर गेट वर्टिकल रेज ऑफ द सन। मीन जैसे एग्जाम्पल दिया है श्रीनगर, तुमने देखा होगा नॉर्दर्न पार्ट, अगर इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, श्रीनगर कहाँ पे है, कश्मीर में। ठीक है, तो कश्मीर में अगर जो रीजन इक्वेटर से जितना दूर जाएगा, ये मान लो सन है, ठीक है, ये यहाँ से इक्वेटर है, तो इक्वेटर ट्रॉपिक और कैंसर। ठीक है, तो इस रीजन में सन का डायरेक्ट रेज और वर्टिकल रेज ऑफ द सन गिरता है। ठीक है, इफ श्रीनगर इज लाइज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ओके, तो यहाँ पे सन का कौन सा रे गिरेगा, स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन गिरेगा। तो स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन गिरेगा मतलब डेफिनेटली यहाँ पे कौन सा जोन होगा, कोल्ड होगा थोड़ा सा। लेकिन एक्चुअली जियोग्राफी के हिसाब से होना क्या चाहिए था, गर्म, लेकिन नॉर्दर्न माउंटेन के वजह से और सन का जो थोड़ा सा स्लैंटिंग रेज गिरने के कारण वहाँ पे टेम्परेचर डाउन रहता है हमेशा। तुमने देखा होगा वहाँ पे जो बॉर्डर होते हैं वहाँ पे हमेशा मैक्सिमम टाइम पे बर्फबारी होता रहता है। ओके, श्रीनगर देखो, तो सिटी नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया के जो सिटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बहुत पास में है,
ओके, वो कौन सा सिटी है? त्रिपुरा। ओके, टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय हियर सर्वे ऑफ इंडिया। जो सर्वे ऑफ इंडिया ने ये वाला बहुत ही बड़ा सा जो हमारे इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया के अंदर जियोग्राफिकल मैप प्रिपेयर करता है और उसके बेसिस पे हमारे यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, हमारे क्लाइमेट चेंजेस कैसे हो रहे हैं, वेदर फोरकास्ट कैसे होगा, तो ये सारे डिपार्टमेंट संभालता कौन है? सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये डिफाइन करेगा हमारे यहाँ पे कैसे कौन सा चीज़ चेंजेस हो रहे हैं, उसका इन्फ्लुएंस कैसे हो रहा है, कहाँ पे कैसा मौसम है, तो उसका हाल चाल सारे बताने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया इसका रेस्पॉन्सिबल लेता है। ठीक है, तो हमारे इंडिया के अंदर तुमने और सुना होगा ये वाला इंडिया सेंट्रल इंजीनियरिंग एजेंसी चेंजेस द मैपिंग एंड सर्वेइंग। ठीक है, जो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया है वो क्या करते हैं ना, कहीं कहीं जगह पे अगर हमारा मैप के अंदर कोई चेंजेस आ रहा है, कोई न्यू स्टेट्स क्रिएट हो रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्रिएट हुए, ओके, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे स्टेट्स क्रिएट हुए, तो मतलब जब न्यू स्टेट्स फॉर्मेशन होते हैं या कोई यूनियन टेरिटरी बनते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है, एक सर्वेड मैप बनाता है। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक टेम्पोरारी लाइन क्रिएट करते हैं, टेम्पोररी बॉर्डर क्रिएट करते हैं जो आगे एक्सटेंस भी हो सकता है या फिर मर्ज भी हो सकता है। ये हमारे इंडिया के अंदर हमने देखे हुए हैं, तुमने पॉलिटी के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे जहाँ पे हम कॉन्फ्लिक्ट करते हैं या फिर कंबाइन करते हैं, कोई स्टेट्स को तोड़ सकते हैं। जैसे कश्मीर को मिला हुआ था आर्टिकल 360 के हिसाब से एक स्पेशल स्टेट्स का मान्यता। ठीक है, वह हमें 370 हटाया, ओके, 51A हटाया, तो अभी वो दोनों यूनियन टेरिटरी में हम डिवाइड कर दिए, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर में डिवाइड कर दिए दोनों को। ठीक है, अभी फिर बाद में अभी सिचुएशन वहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, अभी फिर से उसको मर्ज करके एक स्टेट का मान्यता दिया जाएगा जहाँ पे वहाँ पे इलेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, देखो, तो ये फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी हम इनको क्रेडिट देते हैं जेम्स रेनल को, जो कि उनका बर्थ था 1742 से लेके 1830 तक। ओके, ये एक इंग्लिश या फॉरेन जियोग्राफर है। जब इंडिया का मैप बना था, इंडिया जब नया नया इंडिपेंडेंस में आया, तो इनका कंट्रीब्यूशन इंडियन ज्योग्राफी को मैक्सिमम में था, इसलिए इनको हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, ओके, ये जो मैंने तुम्हें बताया था, जो हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स, ये जो 6 हमारे मेजर फिजिकल डिवीजन था ये वाला। ठीक है, अभी देखेंगे हम किसके बारे में ना, नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखो नॉर्दर्न माउंटेन, तो नॉर्दर्न माउंटेन में कितना डिविजन्स हैं यहाँ पे मेजर हम 3 डिवीजन पढ़ते हैं, उसके साथ साथ 2 और डिवीजन पढ़ते हैं। वो क्या होता है हमारा, एक है ट्रांस हिमालय, अदर वन इज पूर्वांचल। ठीक है, तो ये वाला तुमने सुना होगा। जो नॉर्दर्न माउंटेन है ये कहाँ पे लाइज करता है, इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ ऑफ इंडिया में लाइज करता है। तो जो कश्मीर एरिया है, जम्मू एंड कश्मीर एरिया है, और चाइना का जो ही एरिया है जिसको हम क्या कहते हैं, तिब्बत कहते हैं, तिब्बत एरिया। ठीक है, तो वहाँ पे जो हिमालय लाइज करता है दैट इज कॉल्ड द ट्रांस हिमालय। ठीक है, और इंडिया के अंदर हिमालय का 3 मेजर डिवीजन होता है, ये तीनों। ठीक है, मदर कलर चेंज कर लेता हूँ, देखो, तो इसको हम ग्रेटर हिमालय हिमाद्री कहते हैं, इसको हम मिडिल हिमालय हिमाचल कहते हैं, इसको हम लोअर हिमालय शिवालिक कहते हैं। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में कुछ रीजन है जिसको हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, जो कि हिमालयन माउंटेन का सबसे छोटा डिवीजन है। ठीक है, देखो ये मैप्स है, तो हिमालयन माउंटेन का कुछ डिस्ट्रिक्ट, हाँ, ओके, तो ग्रेटर हिमालय का कुछ एरिया है, यहाँ पे ग्रेटर हिमालय लिखा है, जो कि एवरेज एलिवेशन दिया है जैसे मोर देन 4600 मीटर। ठीक है, अगर लेजर हिमालय की या मिडिल हिमालय की बात करते हैं तो ये 4000 मीटर होता है। आउटर हिमालय और यहाँ पे जो रेंजेस है तो 3600 से लेके 4600 मीटर तक है। आउटर हिमालय का रेंजेस देखो 1500 से लेके 3500, जो मिडिल हिमालय का ही पार्ट है। सबसे लास्ट वाला जहाँ पे शिवालिक है, जिसको हम लेजर हिमालय के नाम से जानते हैं, सो 900 से 1500 उसका होता है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन। इसके हिसाब से हम क्या यहाँ पे दिया है, इसे हम सीजन जब पढ़ेंगे, ओके, यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि मार्च से अप्रैल, ओके, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद जो नवंबर टू अप्रैल चलता है, इस सीजन में, इस टाइम पे तुम इंडिया के अंदर कौन सा सीजन चलता है ना, रबी सीजन चलता है। रबी क्रॉप्स होता है नवंबर से लेके मार्च तक। कौन सा क्रॉप्स होता है यहाँ पे, रबी क्रॉप्स।
ठीक है। यहाँ पे जो साउथ वेस्ट मानसून के आने से इंडिया के अंदर जो कि जून से लेकर सितंबर चलता है, यहाँ पे यस खरीफ क्रॉप्स होता है, जो कि इंडिया के अंदर मेजर क्रॉप सीजन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे। देखो देखो हिमालय माउंटेन्स का कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखा हुआ है, देखो तो हिमालय माउंटेन्स यहाँ पे लिखा हुआ है यंग एंड फोल्डेड माउंटेन्स, it is written young and folded mountain. Why it is called young and folded mountains? Now because it is created just recent past में create हुआ है। कैसे create हुआ ना, यहाँ पे हमारा एशियाटिक प्लेट था, ठीक है, और इंडिया नीचे से ओके जो अफ्रीकन प्लेट्स और अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट से कट के जो साउदर्न पार्ट है, जो पेनिनसुलर एरिया है, वो जाके एशियाटिक कॉन्टिनेंट के साथ जब टकराया तब हमारे यहाँ पे हिमालय माउंटेन क्रिएट हुआ था। लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो हिमालय माउंटेन बहुत ही पुराना है, सॉरी बहुत ही नया है, ओके बहुत ही नया है, इसीलिए इसको हम यंग माउंटेन कहते हैं, और ये उबड़ खबड़ से भरा हुआ है, मतलब फोल्डेड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द यंग एंड फोल्डेड माउंटेन। ओके, फ्रॉम द दैट इज द फॉर्म ड्यू टू द कोलाइजन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स एंड यूरेशियन प्लेट, मतलब यहाँ पे एशिया और यूरोप का प्लेट्स है, दैट इज द यूरो एशियन प्लेट्स। ओके, नीचे से हमारा कौन सा प्लेट आ जाता है, हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसको हम अफ्रीकन एंड जो ऑस्ट्रेलिया है कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ से जो प्लेट था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये ऊपर जाके टकराया, तब यहाँ पे हिमालयन माउंटेन क्रिएट हुई, ये जाके यहाँ पे टकराने से हिमालयन माउंटेन बना, ठीक है। देख हिमालयन माउंटेन का अगर एवरेज लेंथ देखें, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये हिमालयन माउंटेन का है, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कितना है 2500 किलोमीटर, ठीक है, और इसका विड्थ मतलब कितना इसका चौड़ाई है। अगर कश्मीर के एरिया में इसका चौड़ाई देखें तो कश्मीर के एरिया में उसका चौड़ाई कितना, लगभग 400 किलोमीटर्स वाइड। ओके, अगर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आ जाएंगे, मतलब शिवालिक रीजन में आ जाएंगे, तो उसका विड्थ कम हो जाएगा, लगभग नियर अबाउट 150 किलोमीटर्स हो जाता है। इसलिए इस एरिया में तुमने देखा कि रास्ता बहुत ही ऐसे होता है, कर्व एरिया, जो जहाँ हम जाते हैं जैसे वैष्णो देवी का वहाँ पे घूमने, या फिर जो दार्जिलिंग कुल्लू मनाली जो उस एरिया में होता है, तो वहाँ पे रास्ता बहुत ही संकरा होता है, ऐसे टेढ़ा, क्योंकि वहाँ पे विड्थ बहुत ही कम है, ठीक है, और मैक्सिमम टाइम पे वहाँ पे लैंडस्लाइड होने का चांसेस भी रहता है, मैक्सिमम टाइम पे ऐसे ही होता है। देखो तो मेजर डिवीजन जैसे मैंने वहाँ पे बताया था, ओके, फर्स्ट वन गिवन हियर ट्रांस हिमालय, ओके, एंड वन इज हिमाद्री। ट्रांस हिमालय कहाँ पे लाइज करता है, तिब्बत रीजन में, ओके, चाइना के अंदर। इंडिया के अंदर इसका तो मैक्सिमम पार्ट नहीं होता, मैक्सिमम जो इंडिया चाइना के अंदर होता है। हिमाद्री, देन हिमाचल जिसको हम मिडिल हिमालय कहते हैं, या शिवालिक जिसको हम लोअर हिमालय कहते हैं, और पूर्वांचल सबसे लास्ट में नीचे होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द हिमालय रेंजेस फॉल इन, जो हिमालय के जितने सारे रेंजेस है, जो मतलब इंपॉर्टेंट रेंजेस है, ट्रांस हिमालय में रेंजेस भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रेंजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, कौन कौन सा 3 कंट्री के अंदर, इंडिया, नेपाल एंड भूटान, ये तीनों कंट्री के अंदर इंडिया के जो मैक्सिमम अमाउंट में जो बड़े बड़े पिक्स हैं, जैसे नेपाल के अंदर सबसे हाईएस्ट पीक है, कौन है, माउंट एवरेस्ट। इंडिया के अंदर हाईएस्ट पीक कंचनजंगा, ओके, K2 गॉर्डन वेस्टर्न। देखो तो नॉर्दर्न पार्टली सिचुएटेड इन तिब्बत, जिसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, अभी मैं बताया। वेस्टर्न इज एक्सट्रीमली इन द इन द पाकिस्तान रीजन, तो उसका जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न का जो एक्सट्रीम है वो पाकिस्तान रीजन में, कुछ पार्ट्स अफगानिस्तान में, एंड मैक्सिमम पार्ट उसका सेंट्रल एशिया मतलब इंडिया के अंदर लाइज करता है, जो मिडिल हिमालय वाला पोर्शन है, जिसको हम हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, ये रीजन तीनों को बोलते हैं, ठीक है। देखो उसके बाद यहाँ पे एक लिखा है ग्रेडियंट्स मतलब इसका स्ट्रीप कैसा है, स्लोपिंग कैसा है, कहाँ से कैसा है, उसका ढलान है, ठीक है। तो अगर नॉर्दर्न से लेके यहाँ पे, तो इसका स्लोपिंग यहाँ से है, इसीलिए जितने सारे रिवर ओरिजिनेट होते हैं, वो रिवर गंगा का ओरिजिनेट की बात करें, रिवर ब्रह्मपुत्र की बात करें, या रिवर इंदस की बात करें, तीनों मेजर रिवर्स फ्लो होते हैं, उसका ट्रिब्यूटरीज भी फ्लो होते हैं इस रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे उनका स्लोपिंग मैक्सिमम एरिया में कहाँ पे होता है ना, आइदर बे ऑफ बंगाल में या फिर अरबियन सीज में, ठीक है। तो क्योंकि उसका ढलान या स्लोपिंग इस एरिया में है। तो साउदर्न स्लोप क्या है पे, जैसे स्ट्रिप ग्रेडियंट, मतलब जो साउदर्न स्लोप है इसका थोड़ा बहुत ही स्ट्रिप स्लोइंग है, जैसे होते हैं कुछ ऐसे फॉल होते हैं जैसे घाघरा फॉल, ओके, पूरा ऊपर से नीचे बहुत ही फोर्स से नीचे गिरते हैं, तो साउदर्न स्लोप और स्ट्रिप होता है, ओके। जो नॉर्दर्न स्लोप है ये थोड़ा जेंटलर स्लोप होता है, मतलब स्लोली आता है। जो साउदर्न स्लोप है स्ट्रिप होता है, बहुत ऊपर से क्विकली नीचे गिर जाते हैं एक्सट्रीम फोर्सेस के साथ, लेकिन जो नॉर्दर्न स्लोप है धीरे स्लो से आते हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, रिवर ब्रह्मपुत्र मेक्स द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हिमालय, मतलब ईस्टर्न साइड में रिवर ब्रह्मपुत्र एक बाउंड्री बनाता हुआ चलता है, ओके। तो हमारे जो
बांग्लादेश में एक जगह है नेमचा बेरुआ, ठीक है, उस जगह में ब्रह्मपुत्र रिवर एक साउदर्न टर्न लेके बांग्लादेश के अंदर घुसता है। इंडिया का जो लास्ट पार्ट है वहीं से साउदर्न टर्न लेके बांग्लादेश के अंदर घुसता है। बांग्लादेश में एक मेजर रिवर के हिसाब से ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होता है, वहाँ पे पद्मा नाम से जानते हैं, ठीक है, गंगा का एक ट्रिब्यूटरी वहाँ पे से कंबाइन होता है, ठीक है। और रिवर सिस्टम के अंदर नेक्स्ट यहाँ पे तो पहले देखते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में क्या क्या पार्ट्स है देखो। तो ट्रांस हिमालय लाइज इन इंडिया एंड तिब्बत, इंडिया, सॉरी 1 सेकेंड, ओके, देखो इंडिया और तिब्बत के बीच में लाइज करता है, ठीक है। दिस हिमालय इज ऑल्सो नोन एज तिब्बतियन हिमालय। व्हाई इट इज कॉल्ड द तिब्बतियन हिमालय? द मैक्सिमम पार्ट जैसे लाइज इन द तिब्बत रीजन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द तिब्बतियन हिमालय, ओके, जो कि चाइना के कब्जे में है तिब्बत रीजन। नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय एंड इट लेंथ इज 1000 किलोमीटर, मतलब जो हमारा ग्रेट हिमालय जिसको हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं, तो उसका नॉर्थ में है, तो इसका लेंथ कितना दिया है 1000 किलोमीटर। रेंजेस, यहाँ पे इंपोर्टेंट जो रेंजेस हैं, व्हाट आर द रेंजेस आर देयर, इंपोर्टेंट रेंजेस। कैलाश माउंटेन तुमने सुना होगा, भगवान शिव जी का घर हम मानते हैं कैलाश माउंटेन। अभी तक माउंट एवरेस्ट के ऊपर लोग चढ़ सके हैं, लेकिन अभी तक कैलाश माउंटेन के ऊपर कोई चढ़ नहीं पाया है। कोई बोलते हैं वहाँ पे सुप्रीम पावर्स है, मे बी, ओके। कैलाश रेंजेस एंड जस्कर, लद्दाख रेंज एंड काराकोरम रेंज, ये ओके 4 इंपोर्टेंट रेंजेस है कहाँ पे, जो ट्रांस हिमालय जो कि तिब्बत रीजन में राइज करते हैं, जिसको हम तिब्बतियन रीजन या तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद है ग्रेटर हिमालय या फिर इनर हिमालय बोलते हैं। देखो द साउथ ऑफ द ट्रांस हिमालय अगर यहाँ पे लाइज करता है, अगर ट्रांस हिमालय लाइज करता है यहाँ पे, ठीक है, तो उसका साउदर्न पार्ट, ये वाला कौन सा पार्ट होगा, ये उसका नॉर्दर्न पार्ट है, तो ये वाला उसका साउदर्न पार्ट है। तो ट्रांस हिमालय का जो साउदर्न पार्ट में कौन सा हिमालय लाइज करता है, ग्रेटर हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय या फिर जो हमारा सबसे बड़ा वाला हिमालय जिसको हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड हिमाद्री, ओके। सो लॉफ्टीएस्ट ऑफ ऑल एंड मैक्सिमम हाइट रेंजेस आर फाउंड हियर। लॉफ्टीएस्ट मतलब यहाँ पे ढलान बहुत ज्यादा है, यहाँ पे हाई पिक्स है, तो हाई पिक्स होगा तो हायर एलिवेशन होगा, तो हायर एलिवेशन के साथ बहुत सारे माउंटेन ऐसे इसका ढलान भी होगा। और मैक्सिमम ये एरिया ग्रेनाइट से बना है, पूरा हार्ड रॉक, ओके। यहाँ पे तोड़ना है, रास्ता बनाना मतलब बहुत इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है, इसलिए यहाँ पे बॉर्डर है, बहुत सारी जगह पे हमारा आर्म फोर्सेस भी डिप्लॉय नहीं हो पाता। तुम्हारा अगर तुम लोग आगे चल के फिर बनोगे, फौजी बनोगे, तो हमारा बॉर्डर एरिया में तुम्हारा पोस्टिंग होगा, तो उस एरिया में मैक्सिमम एरिया ऐसे होता है जहाँ पे दोनों कंट्री समझौता कर लेते हैं, उस एरिया में बॉर्डर रखते ही नहीं, रखने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि उस एरिया में ना ही कम्युनिकेशन है, ना ही चढ़ाई हो सकता है, तो उस एरिया में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। बहुत हायर एलिवेशन है, वहाँ पे ऑक्सीजन का शॉर्टेज भी हो जाता है। देखो एवरेज हाइट दिया है जो 6000 मीटर, ठीक है। तो सबसे बड़े बड़े पीक्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमारा ग्रेटर हिमालय में, जो 6000 एवरेज दिया है। सो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हियर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट कोर। ग्रेनाइट तुमने जानते होगे, हमारे घर में भी हम डालते हैं फ्लोर बनाने के लिए, बहुत ही हार्ड रॉक होता है, ग्रेनाइट्स एंड मार्बल्स, ये सुनो, ठीक है। ये बनते किससे हैं ना, इग्नियस रॉक से। ग्रेनाइट्स, इग्नियस रॉक्स तुमने सुना होगा, 3 फॉर्म ऑफ रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंटरी रॉक्स, ओके। तो ग्रेनाइट्स रॉक, इग्नियस रॉक, जो लाभा कूल डाउन होने के, लाभा इरप्शन होता है, जब वो कूल डाउन हो जाता है तो कौन सा रॉक बनाता है, इग्नियस रॉक्स बनाता है। तो ग्रेनाइट इज ऑल्सो वन फॉर्म इग्नियस रॉक्स, ओके। बहुत ही हार्ड एंड टफ होता है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स का जो बाइंडिंग है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता, इंटरमोलिकुलर स्पेस। माउंट एवरेस्ट जिसका हाइट दिया है 8848, जो कि हाईएस्ट पीक जहाँ कहाँ पे है, नेपाल में, ओके। इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है, ओके, तो वहाँ पे लाइज करता है सबसे हाईएस्ट पीक, जो कि 8448। इंडिया के अंदर लाइज करता है कंचनजंगा, उसका हाइट है 8598, जो हाईएस्ट पीक इन इंडिया, कंचनजंगा, ठीक है। नेपाल में वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक लाइज करता है माउंट एवरेस्ट, इंडिया में लाइज करता है कौन, कंचनजंगा, 8598, ओके। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंजेस इन द वर्ल्ड, मतलब यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट नहीं है, मतलब ये जो माउंटेन चालू हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे भी इसका ब्रेकआउट नहीं है, कंटिन्यूअसली है। जैसे ट्रांस हिमालय में कहीं पे ब्रेकआउट है, अदर मिडिल हिमालय में हम जाएंगे वहाँ पे भी कहीं कहीं पासेस है, लोअर हिमालय शिवालिक के अंदर वहाँ पे भी पासेस है, वहाँ पे ब्रेकआउट है। लेकिन ये जो रेंजेस है यहाँ पे कोई बीच में पासेस नहीं है या ब्रेकआउट नहीं है, कंटिन्यूअस रेंजेस है, ठीक है। देखो मिडिल हिमालय, ओके, जिसको हम हिमाद्री कहते, सॉरी हिमाचल कहते हैं। देखो साउथ ऑफ द हिमाद्री मोस्टली, सॉरी 1 सेकेंड, देखो सो साउथ ऑफ द हिमाद्री
एंड मोस्टली रॉक्ड सरफेस आर देयर। एंड यहाँ पे थोड़ा रॉक्ड सरफेस मिलता है। रॉक्ड सरफेस क्यों? तो यहाँ पे जो पत्थर हैं ये थोड़ा मिट्टी के साथ कुछ जुड़े हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा उबड़ खाबड़ रहता है। यहाँ इस एरिया में कुछ कुछ जगह पे लैंडस्लाइड भी होते हैं। देखो एवरेज ऑल्टीट्यूड इज 3700 एंड 4500 मीटर, मतलब वहाँ पे हमने एवरेज ऑल्टीट्यूड कितना देखा 6000, यहाँ पे 3700 से लेकर 4500, नियर अबाउट हम 5000 के अंदर यहाँ पे एवरेज ऑल्टीट्यूड देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशन आर फाउंड हियर, तो यहाँ पे बहुत ही ठंडी गिरता है, बहुत सारे हिल स्टेशन मिलते हैं। फेमस रेंजेस क्या क्या है, जैसे पीर पंजल हो गया, सबसे बड़ा रेंजेस है, ओके। महाभारत रेंज होता है यहाँ पे, और धौलाधर, ये तीनों इंपॉर्टेंट रेंजेस होते हैं कहाँ पे, मिडिल हिमालय में, ठीक है। हमने ग्रेटर हिमालय में देखा कौन सा ग्रेट रेंजेस है, वहाँ पे हमने देखा कैलाश रेंजेस और कौन सा रेंजेस, धौलाधर, नहीं यहाँ पे नहीं, ग्रेटर हिमालय में कैलाश रेंजेस वहाँ पे है, और हमारे दैट इज द एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट का पीक वहाँ पे है, और कंचनजंगा का पीक वहाँ पे है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट रेंजेस है, जो हाईएस्ट पीक्स हैं, तो कहाँ पे है, हमारे ग्रेटर हिमालय में। मिडिल हिमालय में ये थोड़ा ना ही बहुत ही ज़्यादा है ना ही बहुत ही कम है। जैसे पीर पंजल रेंजेस सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट इसका रेंज है, महाभारत रेंज, ओके, और धौलाधर रेंज। यहाँ पे कुछ वैलीज जैसे काश्मीर वैलीज, कुल्लू वैलीज एंड कांगड़ा वैली, जो कि हिमाचल प्रदेश हमारा जो स्टेट है वहाँ पे लाइज करते हैं। काश्मीर वैली काश्मीर में लाइज करता है, और इसको छोड़ के जो कुल्लू वैली है, कांगड़ा वैली है, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में लाइज करते हैं। जो इस वैली एरिया में क्या होता है ना, वहाँ पे फ्रूट्स का कल्टीवेशन किया जाता है, वहाँ पे थोड़ा गार्डनिंग, ये सारे फ्लावर से कल्टीवेशन किया जाता है। उस एरिया में टूरिस्ट स्पॉट डेवलप होता है, जैसे मैक्सिमम दी हिमाचल प्रदेश और हमारा कश्मीर, ये दोनों रीजन हमारे टूरिस्ट स्पॉट के लिए फेमस है। वहाँ पे इतना कल्टीवेशन को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता, जैसे प्लांटेशन टाइप ऑफ क्रॉप्स जैसे टी या कॉफी, उसका कल्टीवेशन वहाँ पे होता है, ठीक है। देखो आउटर हिमालय, लास्ट पार्ट बचा है, देखो। सो दिस इज फेसिंग, ओके, देखो आउटर हिमालय दैट इज कॉल्ड शिवालिक, ओके, शिवालिक रेंज में। दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्दर्न प्लेन एंड एवरेज ऑल्टीट्यूड इज 900 to 11, जो मैंने मैप भी तुम्हें दिखाया था वहाँ पे, तो 900 से लेके 1100 मीटर्स का है। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ द सेडिमेंटरी रॉक्स, जो ऑन सॉलिडेटेड सेडिमेंटरी रॉक्स। तो जो ग्रेनाइट रॉक्स है वो कौन सा रॉक था, इग्नियस रॉक्स था, बहुत ही टफ रॉक्स था। तो यहाँ पे सेडिमेंटरी रॉक से सेडिमेंट डिपोजिट होने के कारण यहाँ पे जो सरफेस बने हुए आउटर हिमालय के अंदर, द एरियाज दैट लाइज आर बिटवीन द मिडिल एंड आउटर हिमालय, दे आर नोन एज ड्यून्स। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम जगह पे तुम्हें छोटे छोटे माउंटेन्स का छोटे छोटे टीले देखने को मिलेगा, जिसको हम ड्यून्स कहते हैं। जैसे डेजर्ट एरिया में क्या होता है, सैंड ड्यून्स होते हैं, तो यहाँ पे भी छोटे छोटे माउंटेन के टीले होते हैं, जिसको हम ड्यून्स कहते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट ड्यून्स यहाँ पे जो देहरादून, तुमने देहरादून नाम का एक इंपोर्टेंट सिटी सुना होगा, ओके। वहाँ पे हमारे क्रिकेट का प्लेइंग होता है, ओके, बहुत है। अभी तो IPL का सीजन भी चल रहा है, वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यस, उत्तराखंड। देखो तो यहाँ पे और कुछ इंपोर्टेंट हिल्स भी हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखो तो मणिपुर हिल्स, ओके, एंड मिजो हिल्स इस आउटर हिमालय में लाइज करते हैं। तो इट इज द हिमालय दैट इज यंगेस्ट एंड अरावली इज द ओल्डेस्ट वन, ओके। जो आउटर हिमालय है सबसे बाद में बना हुआ है, जो लास्ट में, इसीलिए ये सबसे हिमालय माउंटेन का यंगेस्ट पार्ट है, और अरावली हिल्स सबसे पुराना है। जो अरावली हिल्स यहाँ पे ऐसे लाइज करता है, मैंने लास्ट क्लास बताया था, ऐसे लाइज करता है क्योंकि मॉनसून क्लाइमेट को रोक नहीं पाता, इसीलिए हमारे वेस्टर्न पार्ट में डेजर्ट एरिया है, ठीक है। तो हाईएस्ट माउंटेन पीक हियर अरावली, जिसको अरावली के अंदर सबसे बड़ा माउंटेन जिसको हम गुरु शिखर के नाम से जानते हैं, उसका हाइट दिया है 1722 मीटर्स इसका हाइट है, ठीक है, जो कि राजस्थान में लाइज करता है। द आर्कियन सिस्टम्स, ओके, इज द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम्स इन इंडिया, मीन्स हियर वी कैन से। तो हिमालय माउंटेन यहाँ पे आर्क जैसा बना हुआ है, ओके, आर्क मतलब ऐसे बो की तरह शेप में। तो यहाँ पे जो सिस्टम होते हैं तो ये ऐसे होते हैं, तो इसके बीच में जो अगर रीजन बचेगा वो क्या बनेगा ना, पासेस बनेगा, ठीक है। तो इस रीजन में पासेस बनेंगे। सो दीज आर फाउंड इन अरावली माउंटेन्स इज द 2/3 ऑफ द डेक्कन पेनिनसुला एंड सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। मतलब जो डेक्कन पेनिनसुला है, 1 सेकेंड, देखो ये जो हमारा डेक्कन पार्ट है, लास्ट पार्ट डेक्कन एरिया, ठीक है। डेक्कन एरिया यहाँ पे जो एरिया है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एरिया कौन कवर अप करता है ना, अरावली माउंटेन, ओके। तो अरावली माउंटेन कवर्स द 2/3 ऑफ द डेक्कन एरिया, व्हेयर इज द सम पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ये हमारा नॉर्थ है, ओके, नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्थ और ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ एरिया कवर अप करता है, और मैक्सिमम जो 2/3 पोर्शन है, 2/3 पोर्शन कवर अप कर लेता है
कहाँ पे, तो हमारा मैक्सिमम जो पेनिनसुलर प्लेटूज के अंदर। ओके, तो अगर टाइम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो क्या हुआ ना, जो सॉलिडिफिकेशन हुआ, जो मैग्मा जो कूलिंग हुआ उसका सॉलिडिफिकेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अर्थ का जो सरफेस बना, ठीक है, जो कि प्री कैम्ब्रियन ओरिजिन है, जो कि एक बहुत ही लॉन्ग पीरियड जिसको हम जो मेजोलिथिक एज, ओके, जो मेजोलिथिक एज है, मिडिल जो स्टोन एज है, मेजोलिथिक एज, तो वहाँ पे तुमने हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, तो उस पीरियड ऑफ टाइम से ये बना हुआ है, ठीक है, बहुत ही एक लंबा पुराना समय से ये बना हुआ है, इसलिए इसको प्री कैम्ब्रियन एज हम कहते हैं, ठीक है। ओके, सो दैट इज द हिमालय या फिर नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में ये सारे डिस्क्रिप्शन था, ठीक है। ये सारे जो पार्ट्स हम पढ़े हुए हैं, मतलब ट्रांस हिमालय, देन ग्रेटर हिमालय, देन मिडिल हिमालय, देन आउटर हिमालय एंड लास्ट में पूर्वांचल, ठीक है। लाइक करिए, शेयर एंड कमेंट करिए, सब्सक्राइब। थैंक यू, जय हिंद।